हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट दार्जिलिङले यसको 66औं स्थापना दिवस धुमधामका साथ पालन गरेको छ। उक्त स्थापना कार्यक्रममा पश्चिम बङ्गाल राज्यपाल जगदीप धनखडको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो भने यस विषयमा एचएमआईका निर्देशक जय किसानले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसरी जानकारी दिएका छन्। It is an unforgettable moment to be ever cherished, to be present here on this particular day. I will ever remember it. Group Captain Jay Kishan ji, Principal HMI, his wife Srimati Nipun Sisodia ji, energetic Vice Principal, who has been very kind to me by introducing me the way he did. Sridharan Dev Rai, IFS Director Zoological Park. I recognize with lot of fervor and satisfaction presence of Germany Tenzing Norgay, First Lady Srimati Sudesh Dhankar, Shri Satish Tiwari, Additional Chief Secretary and Secretary to the Governor, members of the staff of HMI, ladies and gentlemen, and members of the media. I have a strong emotive connect with HMI. Though this is my first visit here. When I was admitted to Saint School Chittorgarh, HMI conducted a program
And they got students from Saint School Chittorgarh also. My elder brother Kuldeep Dhankar was also a student in the school then. He was a little more fit than I was. He was selected to be at HMI. I narrowly missed it. I carry impressions of HMI then and the badge, and he ever projected it while he was a student at Saint School and even now. HMI is unique. It inspires and motivates human genius, and rightly said, from one peak to another peak. Our first Prime Minister laid the foundation stone, and the current Prime Minister is enhancing all those aspects, even at a global level. If the Prime Minister of the country indicates with great emphasis what fitness is, I am sure the nation is bound to be on a very healthy route. The entire world overwhelmingly came to recognize yoga, and we now have an international celebration of yoga. But HMI has attained a major milestone by going to a peak away from this country and having yoga there. I congratulate the management and those who accomplished it. Activities of HMI carry a lot of significance, particularly for the times in which we live. COVID has jolted us as never before. This invisible virus, attached to no ideology, committed to no country or race, has impacted living beings, focusing on human species. The whole world has been stressed. By engaging in other activities also, go green, a soothing concept, a need of our times. HMI has done its bit. I am sure it will be on the rise. But what we need in these times is that our youth must be motivated in most affirmative mode to give back to the society, to serve a societal cause. And I had the occasion to see a small step that will have big impact. Quick response mechanism. Just imagine if it catches, it's bound to catch. It will do so many things. And one, it will connect youth to rise to the occasion and have that attitude for which for thousands of years our civilization has been known. We need to rediscover it with the same kind of commitment and fervor. Historically recognized and saluted. The tea industry has given us a new mission in the world, tourism, and HMI has added its name to this particular venture, and I am sure it will go a long way. As governor, I do not control finances to a level that I can lend fiscal strength to an institute like yours. I would make a modest
notional contribution to be used as per discretion of your illustrious principal in the way he deems fit. An amount of rupees 1,01,000 will be sent to HMI. And having taken this small step, I would urge the corporate world that they must come forward. They must come forward to associate themselves with this unique organization that will be magnetic and leave a very good image. I am saying so for one reason. I have come here physically for the first time, but when my brother came here, everyone in the school knew about it. The badge he used to sport carries a different meaning. I wish you well, all the members of the faculty, enormously talented, those who have won the prizes, those who are participating in the blood bank. And I am sure there will be more occasions for me to connect with HMI. I have taken a personal decision that since North Bengal and Darjeeling are of critical consequence for the state, as governor, I should be spending here time proportionately. That will give me an occasion to be more in touch with HMI as well. Best wishes to all of you. This is for the first time I am having some indirect communication with members of the media in Darjeeling. I have a plan to connect with members of the media after November 8, and I am sure I will be enlightened by the interaction we will have beyond a press meet. Thank you so much. Namaskar. सर वन क्वेश्चन सर वन क्वेश्चन सर, आपसे मुलाकात होने के बाद ही डीएम का भी ट्रांसफ़र हुआ, और इस बारे में क्या बोलना है सर? I will meet members of the press या मैम सर in 3-4 days. ओके And take all questions. ओके सर ओके थैंक यू सर। ये आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा। नमस्कार, आप सभी को हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जो आज का प्रोग्राम है हमारा 66 रेजिंग डे है इंस्टीट्यूट का। 4 नवंबर 1954 को हमारे इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे रखा गया था, और इसी फाउंडेशन डे को हम हर साल मनाते हैं। आज 66 एनिवर्सरी है HMI का, और इसके साथ साथ हमने तेंजिंग नॉर्वे MTV चैलेंज जो कि 27 मई के आसपास प्लान था, बिकॉज ऑफ कोविड दैट गोट पोस्टपोन, तो उसका हमने अपना जो है 2 नवंबर को रेस ऑर्गेनाइज़ की थी, और उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने आज अपने एनुअल डे के साथ कंबाइन किया है। ये रेस में कहाँ से पार्टिसिपेट किया? रेस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक वर्चुअल रेस है और एक एक्चुअल लाइव रेस है। एक्चुअल लाइव रेस दार्जिलिंग में हुआ है, मुंगपू से शुरू हुआ था और वो टाइगर हिल पे जाकर के एंड हुआ था, जिसका डिस्टेंस कुल मिला के 35 किलोमीटर था। रेस के दौरान पार्टिसिपेंट चतकपुर सेंचुरी से भी गए थे, जो कि ऑफ रोड एरिया है, आप सभी देखा हुआ इलाका है। एंड जो डिफ़िकल्टीज थी इसमें आप देखेंगे मुंगपू से लेकर के 3 माइल तक पूरा अप स्लोप है, करीब 18 किलोमीटर का बहुत ही टफ टेरेन है, अप स्लोप। उसके बाद जब आप ऑफ रोड आते हैं चतकपुर सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे पूरा ऑफ रोड है, बोल्डर्स है, कच्चा रास्ता है, वहाँ साइकिल्स ने काफ़ी अच्छा नेगोशिएट किया जंगल के रास्ते में। फिर चतकपुर से बाहर निकल के फिर से जो मेन हाईवे पे आने के बाद जोर बंगला से सभी राइडर्स ऊपर टाइगर हिल तक पूरा अप स्लोप है। सो डिफ़िकल्टी लेवल हुआ वेरी हाई। जैसे कि हम तेंजिंग साहब के नाम की इवेंट करते हैं, तो चैलेंज भी उन्हीं के तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए।
तो अगर आप देखेंगे तो हमने इस इवेंट को 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था और विद इन 1 मंथ ऑफ नोटिस पता ही था कि कोविड सिनेरियो क्या रहेगा, कितने लोग आ पाएंगे, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सो इसमें जो है अभी पार्टिसिपेंट ज़्यादातर दार्जिलिंग से थे, कालिम्पोंग से थे, सिलीगुड़ी से थे, दैन दिल्ली से, JNK एरिया से और रांची से, झारखंड से, इस तरह के ज़्यादा पार्टिसिपेंट। और साथ ही साथ हमें खुशी है कि शॉर्ट नोटिस होते हुए हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी 3 से 4 राइडर्स ने आके पार्टिसिपेट किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दार्जिलिंग में भी काफ़ी रेस के साथ उत्साह आते जा रहा है और काफ़ी जो यंगस्टर हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग टू साइकिलिंग। मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में साइकिलिंग को यहाँ प्रोत्साहन मिलेगा और जो हमारे यंगस्टर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आगे जाके इंटरनेशनल रेस में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है ओलंपिक इवेंट है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एरिया है उसको और डेवलप करें ताकि हम यहाँ पे दार्जिलिंग के स्टूडेंट जो बच्चे हैं और जो यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव ओपन दैट सच क्विक रिएक्शन टीम कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बैच के अंदर 40 के ट्रेनिंग्स दार्जिलिंग लोकल्स को सर्च एंड रेस्क्यू का बेसिक ट्रेनिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है फरवरी एंड तक करीब दार्जिलिंग से 400 यूथ को एक टीम तैयार कर सकें जिनको सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की बेसिक ट्रेनिंग आती हो, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर लोगों की जान बचा सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया है तो वो पास से वहाँ भाग के जा सकता है हेल्प करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि मेन डिजास्टर टीम जो यहाँ पे कहीं और सिंह मारी में बैठी है या एच में बैठी वही जाके वहाँ रेस्क्यू करे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसको अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है और उम्मीद करते हैं सबके सहयोग से, भारत सरकार की सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से हम सभी को कम से कम दार्जिलिंग के अंदर 400 लोगों को ट्रेनिंग दे सकेंगे। कहीं भी अगर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है या किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी शख्स जो नियर बाई होगा, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या कोई व्हीकल जो है रोड साइड से टॉपल हो गया है, वहाँ पर रेस्क्यू जरूरत है। आप सब वेट करने की जगह जो भी कोई नज़दीक हो वहाँ पहुँच के जो डिस्ट्रेस पर्सन है उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे गवर्नर आए थे, का प्लान अचानक बना और कल शाम को हमारे पास सूचना मिली कि वो यहाँ पे जू में और HMI में घूमने आ रहे हैं। तो सीइंग द ओकेशन दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की इफ़ ही लाइक टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द ओकेशन। ही काइंडली एक्सेप्टेड दैट ऑफर एंड विद शॉर्ट नोटिस विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोटोकॉल ही एग्रीड फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई कैन से। उनसे हमने जो भी काम किया है उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कॉन्सेप्ट जो हमने बताए हैं, गो ग्रीन कॉन्सेप्ट, दार्जिलिंग को साफ़ रखना है, गंदगी भगाने की कोशिश करना है, कूड़ा कचरा टूरिस्ट आते हैं उनको रोकने का है, हमारे छोटे छोटे मोहल्ले वहाँ पे हमें क्लीनेस ड्राइव शुरू करने का है। क्विक रिएक्शन टीम का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया उसमें मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से लोग जुड़ें, उनको हम 7 दिन का ट्रेनिंग कराएंगे ताकि हर किसी को कम से कम बेसिक टेक्निक आना चाहिए लाइफ में किसी की मदद करने के लिए। ये हमारा एम रहेगा। साथ ही साथ MTB रेस जो हमने बताया है उसका 3rd एडिशन विल ट्राई टू रेज इट टू अ नेक्स्ट लेवल ताकि और दार्जिलिंग का नाम हो और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट और एथलीट यहाँ पर आए।